कोडीन आधारित कफ सिरप की तस्करी से जुड़े मामले पर उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ सरकार की नीति पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की है। उन्होंने कहा कि चाहे दिल्ली में भाजपा सरकार हो, उत्तर प्रदेश में या देश के किसी अन्य राज्य में, हर जगह अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कोडीन सिरप से जुड़े इस मामले की गहन जांच जारी है और लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं। पंकज चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस अवैध कारोबार में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि कानून अपना काम करे और समाज में नशे और अपराध के नेटवर्क को पूरी तरह तोड़ा जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे दिल्ली की हो और चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे देश की कहीं की भी हो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होती है। और कोडीन का जो विषय आपने पूछा है, उसकी जांच चल रही है, धरपकड़ भी चल रही है। जो भी दोषी व्यक्ति होंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। संसद में वीबीजी रामजी विधेयक के पारित होने पर कांग्रेस सांसद शफी पराम्बिल ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ऐसा कदम है जिसे कोई भी भारतीय कैसे स्वीकार कर सकता है। शफी पराम्बिल ने सवाल उठाया कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कदम गोड से प्रेरित सोच को दर्शाता है। उनके अनुसार सरकार भले ही इसे जी राम जी कहे, लेकिन इसके पीछे भगवान राम की भावना नहीं है, बल्कि नाथूराम की मानसिकता है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि इस विधेयक से सबसे अधिक असर देश के सबसे गरीब वर्ग पर पड़ेगा। उन्होंने पूछा कि सरकार आखिर देश के गरीबों के खिलाफ जंग क्यों छेड़ रही है। शफी पराम्बिल ने यह भी दावा किया कि भाजपा का समर्थन करने वाले लोग भी इस एजेंडे से खुद को नहीं जोड़ पाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये विधेयक सामाजिक न्याय और गरीबों के अधिकारों के खिलाफ है और कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती रहेगी। An MP, how do you see that the central government has been revamped in regard to... See, not just an MP or not just a politician, whoever, an Indian. How can an Indian agree to this? What is the motive of taking out Mahatmaji's name out from Manrega? What is the logical reason behind it? What is the legal reason behind it? Can anyone born as Indian, living as an Indian, can justify this? So this is a God-say motivated action by the government. Though they call it G Ram G, it's not Lord Ram in their mind. In their mind, it is Nathuram. So no Indian can agree to this. Second thing, regarding now, say 60-40. How can a state like Kerala bear this burden? So though they announce it as 125 days, and practically they are going to ensure that not even 50-60 days is easy for the government. So who is getting affected? The poorest of the nation? Who else? The poorest of the nation? Why the government is declaring a war on the poorest of this nation? So this is anti-poor, anti-constitutional, anti-freedom fight, anti-history. In any case, there are difference of opinion on so many things that they pass, that they bring. But in this case, there is not even a single point where an Indian cutting across caste, creed, politics and state can join. So actually, even the Prime Minister terming this as a Manrega as a monumentum of Congress failure, why they are so busy taking the credit of their own? They want this project to be named after their agenda. So if this was a failure, why would they take it up? In last 2 decades, this was one of the biggest and huge success in world economy where the poor has been benefiting. Even when the 2008 crisis was happening, India's hunger index was not going down. Why? Because we were ensuring that at least 100 they get something and they could earn their bread and butter, least minimum, to buy some medicine without the help of their children. Maybe to buy some chocolate for their grandchildren. To have something their own. To consult a doctor, to pay 100 rupees to a doctor. They need not extend their hands to their children. A senior mother or father.
You know how much the economical effect of this, like a leader of opposition told today. Where are they spending this money? They are not going to deposit it in bank. They are spending in the local store, very small stores for local purchases, small things, their own needs. So this is a war declared on the poorest of this country, and we are going to fight it out, because for us it's our responsibility. We flaunted this in India. Manmohan Singh Ji's government, Sonia Gandhi's vision. We flaunted this in India. It's our responsibility to fight back. We'll fight back on the streets. We'll be fighting. We have been fighting in the Lok Sabha. You can see Congress on the streets regarding this. I want to ask about how Congress is going to in this state. Will be the same as the farm laws protest? Definitely, this has to be a people's movement. This is not just a Congress movement. This is not just a Congress agenda. This definitely has to be a people's movement across the country. Everybody must step in. We request every single Indian to step in. There are only two sides in this. One government, rest the people of India. Not even political sides can join this, I guess. Those who even support BJP cannot join this agenda. तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बेहद आश्चर्यजनक है कि वो अब बांग्लादेश में हिंदुओं की पीड़ा की बात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब कांग्रेस पार्टी की ओर से इस तरह का बयान सामने आया है, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस के कई नेता उन्हीं लोगों का समर्थन करते रहे हैं जो हिंदुओं पर हमले करते हैं। रामचंद्र राव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा भारतीय मूल्यों, हिंदू धर्म और हिंदुत्व पर हमला किया है और उन तत्वों का समर्थन किया है जो इसके खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम अब कांग्रेस को यह एहसास हुआ है कि बांग्लादेश में हिंदू वास्तव में पीड़ित हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को अब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों और अन्य आतंकवादी संगठनों की खुलकर निंदा करनी चाहिए जो भारत में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से ऐसे तत्वों को प्रोत्साहित न करने की अपील की जो देश में अव्यवस्था पैदा करते हैं। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष ने प्रियंका गांधी वाड्रा से आग्रह किया कि वे बांग्लादेश से भारत में हो रहे अवैध घुसपैठ का विरोध करें और ऐसे लोगों के नाम भारतीय मतदाता सूची से हटाने के प्रयासों का समर्थन करें। It is very surprising that Priyanka Gandhi speaks of the sufferings which Hindus are facing in Bangladesh. And the first time that they are coming out with such type of statement, the Congress party, they are all actually the supporters of the people who actually attack Hindus. The leaders of Congress party have always attacked the Indian ethos, Hinduism, Hindutva, and also supported those who are against it. They support Pakistanis, they insult Operation Sindoor, they insult our Indian army. At least now they have realized that Hindus are really suffering in Bangladesh. In Bangladesh, it is the Bharatiya Janata Party, the first party, and also the government, which actually made diplomatic steps towards stopping of the Hindu massacre and Hindu harassment and Hindu persecution. At least they should now condemn the Pakistani terrorists and other terrorists who are trying to disturb India, and they should not encourage such type of elements to cause disturbances in the country. At the same time, I request Priyanka Gandhi to oppose the illegal immigrants entering from Bangladesh to our country, and also support the removal of their names from the Indian voters list. Otherwise, the continuation of the violence in Bangladesh will spread to our Indian borders and Indian bordering states. So therefore, just by mere condemning the massacre of Hindus and the persecution of Hindus in Bangladesh by Congress party is not enough. They should oppose the Bangladeshis and other countries who are trying to enter India illegally. जल शक्ति विभाग के नौशहरा डिवीजन में कार्यकारी अभियंता जतिंदर कुमार ने बताया कि सिंचाई विभाग क्षेत्र में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग लोगों तक स्वच्छ और पर्याप्त पानी पहुंचाने के साथ साथ उनकी दैनिक जरूरतों को काफी हद तक पूरा कर रहा है। जतिंदर कुमार के अनुसार हाल ही में आई बाढ़ और भारी बारिश के कारण विभाग को काफी नुकसान उठाना पड़ा। अधिकांश नहरों में गाद भर गई थी, जिसे निकालने डीसिल्टिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है।
उन्होंने बताया कि बाढ़ से हुई बड़ी क्षति की मरम्मत और बहाली का काम जारी है और कई स्थानों पर सुधार कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सिंचाई और जल आपूर्ति व्यवस्था को पूरी तरह बहाल करने के लिए विभाग निरंतर प्रयासरत है और जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे। नौशहरा डिवीज़न के अंडर इरिगेशन डिपार्टमेंट अच्छे तरीके से काम कर रहा है ताकि हम लोगों को अच्छा पानी मुहैया करा सके, ताकि उनकी जो डेली नीड्स हैं वो काफ़ी हद तक हम फुलफिल कर रहे हैं। और अभी रिसेंट फ्लड्स के कारण और बारिशों के कारण हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। मैक्सिमम कनाल्स हमारी सिल्टिंग हो गई है और उनको हमने डीसिल्टिंग भी किया हुआ है। और जहाँ कुछ मेजर डैमेजेस हुई थी वो हम रिस्टोर कर रहे हैं और हमारे काम कहीं कहीं चल भी रहे हैं इस वक्त। कितनी स्कीमें चल रही है और कितना फ़ायदा मिलने जा रहा है लोगों को? स्कीमें तो यूटी में रखी हैं कुछ और कुछ डिस्ट्रिक्ट वैक्स में हमने रखे हैं 2 काम, जिसमें एक सुंदरबनी के अंदर नढ़ानी को ख़त्म कर लिया और जिंदा वीर है इधर एक राइट साइड कनाल है उसका हेड वॉश हो गया था, वो हम रिस्टोर कर रहे हैं। और हमारा ठंडा पानी में भी काम चल रहा है, राजल में चल रहा है काम हमारा, और 1-2 जगह और भी चल रहा है ताकि हम कनाल को स्मूथली रन कर सकें। सर यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती करते हैं, यहाँ के काफ़ी प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं। यहाँ हमारे सुंदरबनी नौशहरा की बात करें तो आपका डिपार्टमेंट किस तरह से जो है उनके साथ शाना बशाना करता है? खेती की तरफ लोगों का रुझान काफ़ी बड़ा है और हमारी जहाँ जहाँ मदद लगती है, जो हमें कहते हैं लोग, तो हम उनको फुली सपोर्ट करते हैं। पानी हमारे साथ तो उनका पानी का ही वास्ता है, पानी हम देते हैं और इसके अलावा जहाँ जहाँ वो हमें डिमांड करते हैं हम उधर पहुँचते हैं शाना बशाना उनके साथ। लोगों को कॉपरेट रहता है? 100% कॉपरेशन होता है। लोग मेरे पास भी आते हैं, हम उनके पास जाते हैं और जहाँ उनको हम मदद कर सकें 100% करते हैं मदद उनकी। तो कुछ टारगेट था आपका जो कहाँ तक अचीव हुआ? हाँ, जो हमने टारगेट सेट किया हो वो हम अचीव कर लेंगे वेल इन टाइम। तो लोगों के बीच किस तरह से जाती हैं आपकी जो लगी हुई है आपकी टाइमली, ताकि उनको भी दिक्कत ना आए? हमारे फील्ड स्टाफ रेगुलरली उनके साथ टच में रहते हैं और मोस्टली मैं भी जाता हूँ, साइटों पे चलते हैं, चक्कर लगाते हैं, लोगों से मिलते हैं। अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो इमीडिएटली उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सर यहाँ की वेजिटेबल्स जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी डिमांड भी रहती है। जी ऑर्गेनिक है, वेजिटेबल की डिमांड काफ़ी है और लोगों को हम भी थोड़ा सपोर्ट करते हैं कि आज के युग में वेजिटेबल की जो ऑर्गेनिक है उसको जो लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो उनके लिए जो भी हमसे वो मदद मांगते हैं हम 100% उनकी सपोर्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज पश्चिम बंगाल दौरे पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि कई लोग इसे चुनावी संदर्भ से जोड़ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी पूरे देश में विकास कार्यक्रमों के लिए लगातार यात्रा कर रहे हैं। दिलीप घोष ने कहा कि 12-7 से 12 जागुली तक की सड़क लगभग 17-18 किलोमीटर लंबी है और ये सड़क पिछले 10-15 वर्षों से अधूरी पड़ी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सड़क इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि राज्य सरकार ने भूमि स्वीकृति नहीं दी थी। भाजपा नेता ने कहा कि अब जब ये सड़क बन जाएगी तो ये क्षेत्र के लोगों के लिए काफी लाभकारी साबित होगी और स्थानीय निवासियों की सुविधाओं में सुधार होगा। उन्होंने पीएम मोदी के विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी परियोजनाएं लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती हैं। बहुत लोग इसको चुनाव के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी पूरा देश में प्रवास करते रहते हैं। वहाँ की जो विकास का कार्यक्रम होता है, जो प्रोजेक्ट होता है, उसका उद्घाटन करते हैं। एक तो बारासात से लेकर के और हरिण घाटा जो जागुली तक जो रास्ता है 17-18 किलोमीटर, ये 10-15 साल से पेंडिंग है। उससे पहले से भी और रास्ता बनना चाहिए था और नहीं बन पाया क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने जमीन खाली नहीं किया, रास्ता को साफ नहीं किया। इसलिए जो एक्सप्रेसवे बना है और कल्याणी एक्सप्रेसवे वो अल्टरनेटिव बना है, वो रास्ता रेडी हो गया है। अब चलो ये रास्ता अब बनेगा तो सबके लिए अच्छा रहेगा और उसका उद्घाटन होगा। और जो कल्याणी का आगे का जो रास्ता है वो कृष्णनगर तो बहुत सुंदर रास्ता बना है। कलकत्ता से कल्याणी लगभग 101 घंटा का समय कम हो गया है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। उसके साथ कई और जो विकास का प्रोजेक्ट है उसका भी उद्घाटन करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। प्रधानमंत्री आएंगे तो नेचुरली हम चाहेंगे उनसे सुनने के लिए पूरा देश का क्या चल रहा है, तो वो भी बंगाल के लोगों को संबोधित करेंगे। कल प्राइम मिनिस्टर बंगाल में पोस्ट कर रहा है कि बोला है तृणमूल का लूटपाट और भय प्रदर्शन का राजनीति यहाँ पे चल रहा है, बीजेपी के लोगों का एकमात्र आशा और भरोसा है।
नहीं, यहाँ के लोगों का ऊपर से क्या बीत रहा है, लोग क्या झेल रहे हैं इस सरकार से, टीएमसी सरकार, ये सबको विदित है। तो प्रधानमंत्री इसको और एडवोकेट किया है, इस पर दृष्टि आकर्षण किया है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इसलिए बंगाल के लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री का आशीर्वाद रहेगा तो ये काम जल्दी हो जाएगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें